A video display, and uh, it gives you 4 types of lights, whether you're doing right, you're doing wrong. Then it has got a Bluetooth connectivity, and that will monitor your rate, your depth of compression, whether you're relaxing, if you're in between spending some time out. So we thought we'll even try it, and then at the end it tells you how you perform. 7 people you can monitor at one time, and at the end they can even issue a certificate. So just this will be something interesting. So I think we can watch this. We will start sharp after 1 minute. Where is Kinjal? I can see her also joining in. So Good 9. evening, Yes, Dr. I'm here, Kinjal. I'm here. Good Good evening, evening. Dr. Vijan. How are you? Good evening. Oh, I'm as good. Good. Sumaya and all fine. So the whole team is there. I hope we village guys come up to your expectations. So kuch kam pada to don't laugh, huh? No, doctor, we are sure हमारा you'll do a great principal job है, and all the best for that. Yash is there, and so I'll put it by side. We have just now another 45 seconds, and then we go. And we have 7 o'clock. We are sharp by time, and let us. So a very good evening, all of you. Since we have promised to start on time, and we will have a lot of time for question answers, we have arranged for a very excellent demonstration, which is going to be unique. Why I'm saying it is going to be unique? Because when we got this demo piece, when we were buying, with the guidance of our mentors, they are the hub and we are the spoke. So good, lot of hub is there, and the founding father of this sudden cardiac death prevention of India is also there with us. Proud privilege to have you, Dr. Yash Lokhandwala. And before we start, we will tell you to say a few good words, a few words rather, about this week, which has culminated today. And we would also then have a presentation. And after that presentation, we are going to have a video demonstration. I hope you all please attend and get something from it. So I welcome you all. Now, and before we start, I would invite Yash to say a few words. And Yash, please stay on. Yeah, Vinod, thank you. You have been an old friend and a senior colleague who is a pioneer of cardiology, one of probably the first cardiologists in Nashik. And we, in this sudden cardiac arrest awareness week, have been trying to make several towns and cities all over the country as independent centers, which in future will take up this mantle of spreading sudden cardiac arrest training throughout the country, because it's actually right now we have lot to progress. We have to increase our survival rate from less than 1% to about 15-20% at least in the next few years. That is our aim and our goal of cardiac arrest revival. I am happy that Nashik also has joined this effort, and I'm sure we have, though we have a long way to go, I think this is a good step in the right direction. I have to record the untiring efforts of Dr. Kinjal, who has helped been the fulcrum in setting up this pan India program during this week. So and our team, of course, of Sumaya and Anand, which were outstanding and untiring in their conducting the training program. So I think without wasting more time, let us go on to the program. Thank you. So again, welcome back, and we will begin with the presentation. The purpose, how we are going to conduct this is for the public. It is for the lay public. It's mainly for the students, the secondary college students, the young collegians, and even the lay public who are really would be keen. And we are even going to record, I suppose, the whole session. But of course, this is not just a one-time show, though it is the culmination of this 2nd October of this week, the National Sudden Cardiac Death Prevention Week. But this is the beginning of a new effort, एक नई मुहिम जो कहते हैं, जो हम शुरू करने वाले हैं और जिसको हम perpetuate करेंगे. It started about 3-4 years back when I met Dr. Yash, and he said that probably Nashik would be a little better
because being a small city, if we get 30-35 AEDs, we'll be able to protect the entire city, which will be rather difficult job for entire Mumbai city. So there they have got around still a creditable job around Bandra area, 30-40 AEDs, and they have saved many lives. But to cover entire Mumbai is a mammoth job, and I'm sure he'll be able to do it. But if we do it first for Nasik, possibly we might be the first city in South Asia to have covered the city and made it safe, something akin to European standards. So we took it up as a challenge. Unfortunately, the COVID wave came and we were all thrown apart. All our schedules are thrown apart. I was even pulled out from the country, couldn't return back. But now things are settling. And I said, we must carry on the good work which is started by our mentors, iCare. And the founding father, as I said, is Yash Lokhandwala, along with my friend, Dr. Brian Pinto. And they got very dedicated two persons, Sumaya Raghavan and Anand Srivastava, and a very dynamic lady, Kinjal Goyal. I've yet to meet her, but she's from Pune. And I thought when these people are the hub, let the hub start throwing out spikes. And so what we thought, since they are already a trust, we cannot copy it. So from iCare, we made it WeCare. So we all, actually Yash knows, probably he says we for Vinod, Vijan, Vikrant and all, but whatever it is. So why are we really interested in this? As busy interventional cardiologists, we have seen that I shall go to a share screen and then come to the presentations. Yeah, okay. I come to press karu share. Is that okay? And I come to okay. This is the first slide. And how do I make this? Okay, I'll straight away go to the PPT. So they say train for the moments that matter. And that is what exactly is. One, I have two slides which I've taken from our mentors, and they are, well, I'll be showing you one of them. And so this is a CPR and AED awareness week at the national level, and we are proud to be associated. This is an initiative by WeCare, which is a not-for-profit charitable activity by our hospital in collaboration with iCare Mumbai. So friends, as you know, that heart disease has become a major killer of our times. Unfortunately, it's an epidemic in our country. और South Asia में तो सबसे ज़्यादा highest prevalence है. और सबसे alarming presentation है is sudden cardiac arrest. और वो भी एक asymptomatic, बिल्कुल apparently healthy patient होता है. और अगर पहले 3-4 मिनट में if we do not attend, then attend to the patient and the victim would succumb. He will have permanent brain damage, or even if he is brought out, he could remain a vegetative, but most of the time they die. Even in countries like America, United States, जिसको हम standard मानते हैं, कि अगर unattended अगर होता है, तो उनमें जो survival is less than 8%. तो वहाँ हर समय डॉक्टर कहाँ पहुंचेगा? उनका तो एम्बुलेंस सिस्टम इतना रोबस्ट है कि हम पूरे 4 मिनट के अंदर मैंने देखा है कि एक बार आप उनके 911 को आप फोन करें तो वो लोग पहुंच जाते हैं. तो यहाँ पे कैसे पॉसिबल होगा? तो इट इज ओनली पॉसिबल कि अगर हम पब्लिक को ट्रेनिंग दें. और हम लोगों ने ऐसे एक डिस्कशन में था कि 20% अगर पॉपुलेशन को भी अगर हम ट्रेन करें तो 20% पॉपुलेशन में इतना चांस हो जाएगा कि वो उसको कोई अगर विटनेस्ड कार्डिक अरेस्ट हो तो वहां पे पहुंच सकेंगे और उसको बराबर से पूरा सीपीआर यानी कि कार्डिक ट्रेनिंग देने के बाद हार्ट को शुरू कर सकते हैं जब तक कि एम्बुलेंस नहीं आती है. और उसी तरह अब आस्ते आस्ते हम ग्रेजुअली जाने वाले हैं. पूरे नासिक में हम अराउंड 30-35 AEDs भी अगर हम इंस्टॉल कर लें तो जहाँ पे बहुत सारे there will be charitable companies, societies, people, they will come and they will install it and we'll be helping them to make this initiative possible. और आजकल एक AED का कुछ ज्यादा खर्च भी नहीं आता है. मेरे ख्याल से it comes to around between 70 to 90,000 जो कि आप खुद ही ले सकते हैं. हमारा उसमें कुछ नहीं है. और एक बार हमने उसको शॉक कर दिया
तो यू कैन सेव अ वैल्यूबल लाइफ। तो रेगुलरली हम ये ट्रेनिंग इम्पार्ट करेंगे हमारी सोसाइटी से, डिजिटल प्लेटफॉर्म जो कि अभी कर रहे हैं, और बाद में जैसे ही कोविड का खतरा कम होगा तो रेगुलर स्मॉल ग्रुप जैसे लायंस, रोटरी, पुलिस पर्सनल, छोटी सोसाइटीज, हमारे जो इंडस्ट्रियल ग्रुप्स हैं उन्होंने बहुत सारा इंटरेस्ट दिखाया है। आज भोसला मिलिट्री स्कूल के जो डायरेक्टर हैं प्रोफेसर उन्मेश कुलकर्णी, उन्होंने कहा कि मेरे मिलिट्री बॉयज तो बहुत ही रोबस्ट हैं, और इतना ही नहीं मेरे कुछ कलीग्स हैं यूएसए में, फॉर देम तो उनके लिए कंपलसरी है, बट वो कहते हैं हम भी अटेंड करेंगे। और ये भी बताऊं कि एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल में मेरे फ्रेंड है जो मराठा रेजिमेंट के इंचार्ज कर्नल प्रणय पवार, वो कहा कि हम भी लाइन ऑफ कंट्रोल पे आज आपका प्रोग्राम देखेंगे। तो आई होप मेनी पीपल विल बी एबल टू लॉग इन इफ दे हैव द प्रॉपर कनेक्टिविटी एंड बैंड। तो अगर और उससे ये शुरुआत होगी, और फिर हम उनके लिए रेगुलर जाके भी वहां पे भी हम कंडक्ट करेंगे। तो आज ये जो 2 अक्टूबर का जो है, और हम इसके बारे में, तो ये जो आउट ऑफ हॉस्पिटल होता है, हॉस्पिटल के बाहर जो आदमी को कार्डियक अरेस्ट होता है, वो एक लीडिंग कॉज ऑफ मोर्टेलिटी है। और ये अचानक कार्डियक अरेस्ट जो होता है इंडिया में 4,280 पर लाख कंपेयर टू 60 to only 151 पर लाख इनहैबिटेंट्स इन यूनाइटेड स्टेट्स, जिसकी पॉपुलेशन हमसे 1/4 है, लेकिन हमारा इंसिडेंस देखिए कितना ज्यादा है। उसमें मोर्टेलिटी इतनी ज्यादा क्यों है एडवांस कंट्रीज के कंपैरिजन में? क्योंकि उनके पास बहुत सोफिस्टिकेटेड प्री हॉस्पिटल कार्डियक ट्रोमा केयर सिस्टम है कंपेयर टू इंडिया, और हमारे यहाँ इमरजेंसी सर्विसेज अब बहुत अच्छी तरह से इकट्ठा हो रही है। और मुझे ये बहुत खुशी भी है ये आपको बताते हुए कि 108 के जो ये डायरेक्टर है यहाँ पे डॉक्टर अभय सोनाम ने, वो और उनकी पूरी टीम भी हमें वॉच कर रही होगी, जो कि खुद काफी ट्रेंड है, लेकिन वी कैन ऑलवेज एक्सचेंज आइडियाज, और हम मैनेजमेंट से अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन भी करेंगे। और दूसरे भी कारण है कि लोगों को पता नहीं कि अगर इमरजेंसी है तो किससे क्या बोलना चाहिए, किसको डायल करना है। तो हमारे यहाँ तो 108 नंबर है सेंट्रलाइज, और हर एक जगह में मॉडल्स अलग हैं, कुछ स्टेट्स के नंबर्स भी अलग हैं, और सबकी ट्रांसपोर्ट कैपेबिलिटीज अलग है, फ्रैगमेंटेड है। दिस इज अ स्लाइड वी हैव टेकन फ्रॉम आवर फ्रेंड्स iCare, कि जो हम बिलियंस लूज करते हैं। हमारे देश में माना जाता है कि 10 लाख से ज्यादा लोग हैं जो सडन कार्डियक अरेस्ट, ये तो ऑफिशियल फिगर है, मेरा खुद का मानना है कि इससे काफी ज्यादा होगा। और जैसे कि डॉक्टर याश ने मुझे एक बार बताया था कि कम से कम 20,000 से ऊपर तो मुंबई में ही डेथ्स होती है। तो ये जो डेथ होती है, ऐसा नहीं कि वृद्ध आदमी है या ओल्ड एज, कोई यंग लोग भी होते हैं, जेंडर्स अच्छे फिट होते हैं, इनफैक्ट बहुत ही ज्यादा फिट जो लोग हैं जिन्हें हम सोच भी नहीं सकते कि अरे ये तो एक फिटनेस का एक सिंबल है। और मैं ये भी जानता हूं कि हमारे यहाँ नासिक में मैं तकरीबन जितने भी जिम्स हैं पॉपुलर हैं, हर जिम में कार्डियक अरेस्ट हुआ है। और मैंने खुद अपने 35 इयर्स ऑफ प्रैक्टिस में हर जगह भी बहुत दुख होता है कि बिल्कुल अरे अच्छा ये तो सबसे फिट था, उसके मसल्स देखो और उसे कार्डियक अरेस्ट हुआ है। तो ये जो हम बहुत ही सैड जो न्यूज सुनते रहते हैं, उसको हेडलाइंस को चेंज करना है, और इसको कैसे हमने करना है ये देखना। तो इसका जो इंसिडेंस है कि जितने भी कार्डियक डेथ्स होते हैं, जो कि बिगेस्ट किलर ऑफ अ टाइम है, सडन कार्डियक डेथ 60% रहता है, यानी कि मेजॉरिटी, और 75% जो होता है घर पे होता है। तो वहां पे कहाँ डॉक्टर आएगा? और 90% जो होते हैं आउट ऑफ हॉस्पिटल। 10% एक बड़ा नंबर है हॉस्पिटल में होते हैं, क्योंकि वहां बीमार पेशेंट है, तो वहां कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन 90% लोग हॉस्पिटल के बाहर कोलैप्स होते हैं। तो हर मिनट में अगर हम डिले भी करें तो एक एक मिनट का भी अगर गैप हो तो आदमी के चांस ऑफ सर्वाइवल 10% कम होती जाती है। और ये भी देखा गया है कि हमारे जो एनेस्थीसिया के मैंने रिकॉर्ड से देखा कि इमीडिएट हेल्प सिर्फ 46% लोगों अटेंड किए जाते हैं, और वो 46% मे नॉट बी ट्रेन, लेकिन अगर आप सीपीआर सही तरीके से किया जाए, परफॉर्म करें, तो चांस ऑफ सर्वाइवल 2 या 3 गुना बढ़ जाता है। तो ये जो OHCA आउट ऑफ हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट एक लीडिंग कॉज है मृत्यु का। और जब बाइस्टैंडर सीपीआर को देखा जाता है, जहां पे ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे नॉर्वे में कंपलसरी है कि बच्चों को स्कूल्स में ट्रेनिंग दी जाती है,
मैं जब इसराइल गया था तो मुझे पता चला कि वहां पे भी ट्रेनिंग देना अनिवार्य है, कंपलसरी है। तो वहां पे मोर्टेलिटी कम हो जाती है, और 2 से 3 गुना भी अगर आप सर्वाइवल बचाए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, बजाय कि हम बड़ी बड़ी बात करें कि मैं उसको एंजियोप्लास्टी किया और AICD डाला वगैरह। तो ये जो इसका इंसिडेंस है अनफॉर्चुनेटली बढ़ता जा रहा है, हार्ट अटैक का प्रमाण हमारे यहाँ बढ़ रहा है। आजकल की जो कंपेयर टू वेस्ट, हमारे यहाँ इंडिया में हार्ट के जो प्रॉब्लम्स हैं 10-20 साल पहले शुरुआत होते हैं, और जितने भी अरेस्ट हो रहे हैं वो बिल्कुल सडन होते हैं और कार्डिक की वजह से रहता है। और उसका इनिशियल कारण है जो वेंट्रिकुलर अरिथमिया, यानी कि हार्ट का रिदम होता है जिससे कि सामान्य तरीके से हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन अगर उसका रिदम बिगड़ जाए तो इफेक्टिवली वो पंप नहीं कर पाता, और उसकी वजह से वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, मतलब वो बिल्कुल जैसे कि वो जैसे जेली की तरह काम कर रहा है, इफेक्टिवली खून आगे नहीं दे पाता, उसको वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कहते हैं। और वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया का मतलब है कि जब वो हार्ट बहुत इतनी तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि उसे रिलैक्स करने का समय नहीं मिल रहा, तो ब्लड अंदर आ ही नहीं सकता, तो बाहर कैसे जाएगा, उसकी वजह से आदमी कोलैप्स हो जाता है। तो ये भी बता रहे हैं कि अगर हम ऐसे देखें तो अगर एडवांस कंट्रीज में भी जहां पे इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम बहुत रोबस्ट है, सिर्फ 8% पेशेंट्स हैं सर्वाइव करते हैं आउट ऑफ हॉस्पिटल। तो इसमें क्यों ऐसे होता है? क्योंकि जब कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट होता है तो खून जो है जाना बंद हो जाता है। मसल्स को सर्वाइव करने के लिए समय लगता है, कुछ समय तक चलता है, लेकिन जो ब्रेन है इट कैन सर्वाइव ओनली फॉर 3 to 5 मिनट्स। 3 से 5 मिनट के अंदर अगर ब्रेन को ब्लड ना मिले तो डैमेज होनी शुरू हो जाती है। और ये भी देखा गया कि अगर इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज, चाहे वो बाइस्टैंडर हो, जो पब्लिक है, जो आप लोग देख रहे हैं, जो आप लोग ट्रेन होंगे, तो उससे सर्वाइवल रेट 2 गुना हो जाएगा, ताकि अगर CPR अगर नहीं किया जाए, क्योंकि इमरजेंसी रिस्पांस टीम को आने में समय लग सकता है। ये बाहर का स्टैटिस्टिक्स है, तो हमारे यहाँ आप सोच लीजिए कि रिस्पांस टाइम कितना होगा। तो सबसे ज्यादा बेस्ट तरीका एक ही होता है, बजाय कि हम बहुत बड़े एम्बुलेंस सिस्टम वगैरह को रोबस्ट करने से, जो ताबड़तोड़ जो इमीडिएटली जो हम पेशेंट को हेल्प करें, विच इज दैट गोल्डन, मैं गोल्डन क्या डायमंड प्लैटिनम फर्स्ट 4 मिनट्स, 250 सेकेंड्स जो इंपॉर्टेंट है, उस समय अगर पेशेंट को कुछ किया जाए तो आप उसको मॉर्टेलिटी को आप बिल्कुल कम कर सकते हैं। और जहां जहां पे स्कूल का एक करिकुलम है, अभी हम नासिक में भी शुरू करेंगे, बहुत सारे स्कूल्स ने मुझे उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया। पहली बार सब लोग क्यूरियोसिटी होती है, क्यूरियोसिटी के बाद हम जब ट्रेनिंग करेंगे, आई होप कि हमारे यहाँ जो लेवल नासिक में मोटिवेशन लेवल अच्छा है, हमारे यहाँ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज भी है, तो एक करिकुलम में हम लोग उसको इंक्लूड करवाएंगे, ताकि एटलीस्ट हमारे यहाँ का जो स्टैंडर्ड है एटलीस्ट किसी यूरोपियन कंट्री के नजदीक पहुंच जाए, तो हमारे पास एक अच्छा एक ये मुहिम कर सके। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल है, अच्छे क्रिकेटर मर गए, हमारे नायर हॉस्पिटल के डीन गुजर गए, एक एक्टर चला गया, और हमारे सीनियर भी जो है मिसाइल मैन जो है वो भी। और जब प्रेसिडेंट आते हैं, तो मैं खुद था एक बार जब नासिक में आए, उनके स्टैंड बाय में था, तो जब वो आसाम में थे शिलोंग में, तो वहां तो पूरी टीम भी थी, लेकिन फिर भी अगर समय पर अगर हम कोशिश कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि अगर आपने CPR दिया तो पेशेंट 100% बाहर आएगा, बट इफ गिवन प्रॉपरली उसके चांसेस ऑफ सर्वाइवल बच सकते हैं। तो ऐसी कोई भी एज नहीं होती कि जिसमें कार्डिक अरेस्ट नहीं होता। और मोस्टली कार्डिक, तो ये लोग पूछना चाहते हैं कि ये कार्डिक अरेस्ट तो हार्ट अटैक सिनोनिमसली मानते हैं, ये दोनों में फर्क होता है कि कार्डिक अरेस्ट और हार्ट अटैक दो एक ही चीज होती है, ये सिमिलर है लेकिन बिल्कुल अलग है। कार्डिक अरेस्ट एक इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है, जैसे आपकी बिजली गई, एक क्षण में अंधेरा हो गया, दैट इज इक्विवेलेंट टू कार्डिक अरेस्ट। और जो हार्ट अटैक है, जब हार्ट का सर्कुलेशन आस्ते आस्ते चोकअप होके बंद होता है, पेशेंट को छाती में पीड़ा होती है, ब्लॉक होती है, उसके हार्ट अटैक कहते हैं। और इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम का रिजल्ट बहुत ड्रामेटिक होता है, पेशेंट इमीडिएटली बात कर रहा होता है, कोलैप्स हो जाता है और उसकी हार्ट की गति बंद हो जाती है। हार्ट अटैक में आदमी को समय मिलता है, कभी कभी कुछ दिन तक रहता है, कुछ घंटों तक रहता है, और अगर मैसिव अटैक भी हो तो उसे बचने के लिए समय मिलता है। तो इस करके दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है
कि सडन कार्डिक अरेस्ट जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, मैं बहुत लंबा इसको थियोरेटिकल लेक्चर नहीं बनाऊंगा, किन लोगों में होता है कि जिसमें पहले अटैक हो या हार्ट फेल हो या जिसका हार्ट के रिदम खराब हो और जिसके हार्ट की पंपिंग कम हो, नॉर्मली 60-70% होनी चाहिए, लेकिन जब 35% से कम हो तो उसमें कार्डिक सडन कार्डिक अरेस्ट होने का रिस्क ज्यादा होता है। तो हम लोग एक AICD करके बिठाते हैं। मैं आपको उदाहरण भी दूंगा, एक फुटबॉल प्लेयर जिसके अंदर AICD बिठाया गया था और जब उसको अरेस्ट होता है, आप सामने देखेंगे लाइव किस तरीके से वो बच जाता है। और वैसे ही एक और उदाहरण के जहां एक यंग फुटबॉल प्लेयर जिसको कार्डिक अरेस्ट होता है और इवन इन यूरोपियन कंट्रीज जहां 30 सेकंड में एम्बुलेंस आ जाती है, लेकिन अब ध्यान से देखो उसको CPR कोई नहीं दे रहा, वो बेचारा नहीं बच सका। तो ये होता है और ये तो सिम्टम्स है, पेशेंट कोलैप्स हो जाता है अचानक, अनकॉन्शियस, और उसका श्वास भी बंद हो जाती है या कभी कभी श्वास रहती है लेकिन गैस होता है। तो जरा जरा भी अगर आपको देखें कि जैसे बिल्कुल आखिरी श्वास हम कहते हैं कि गैस कहते हैं, तो वो उसका मतलब ये नहीं कि उसकी श्वास चल रही है। तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज। और हार्ट अटैक जो है, आई थिंक देयर इज सम नॉइज कमिंग इन बिटवीन। सो हार्ट अटैक जो है कि ब्लड फ्लो कम होता है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, फैमिली हिस्ट्री है, डायबिटीज है, स्मोकर है, जो हम जिसके बारे में आज नहीं बात करने वाले हैं, उसको पेन होता है, फटीग रहता है, वॉमिटिंग भी हो सकती है और समय मिलता है हार्ट अटैक के लिए। और कार्डिक अरेस्ट भी हार्ट अटैक के पेशेंट में ज्यादा होता है लेकिन समय नहीं मिलता, और हम इसके ऊपर ये कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं। तो ये हमने जो देखा दोनों के बीच में, प्लीज समझ लीजिए सडन कार्डिक अरेस्ट के और भी कारण हो सकते हैं हार्ट अटैक को छोड़ के। कभी यंग एथलीट्स में भी होता है जिनका हार्ट अपेरेंटली नॉर्मल है, बच्चों में भी होता है, उसको सडन कॉट अरेस्ट बोलते हैं। उसके ऊपर डिटेल में हम नहीं जाएंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट द एडल्ट पॉपुलेशन। और उसी तरह आप देखते रहेंगे तो उदाहरण पे उदाहरण, एक अच्छे वेल टू डू ज्यादा रोबस्ट लोग हैं। और हमारे नासिक में भी बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जय, एक बार मैं देखने गया कि हमारे साइक्लिस्ट एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट, बिल्कुल ही यंग, डायनेमिक, हैंडसम, ही वाज टेकिंग हिज पीपल फॉर साइकिलिंग, और 30-40 इयर्स के बीच में था, और साइकिल करते करते उसको सडन कार्डिक अरेस्ट हुआ और कोई कुछ नहीं कर पाया। काश अगर वहां के टीम को, वो साइकिलिंग ग्रुप को CPR सिखाया गया होता, शायद कुछ हो पाता। उसी तरह हमारे नासिक के मेंटर, जो मेरे भी मैं गुरु मानता था, वो हमारे डॉक्टर हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं, जिनके नाम पे भी हम हमारे मेडिकल कॉलेज हैं। जब सर आ रहे थे, एयरपोर्ट पे उतरे और एयरपोर्ट पे सडन कार्डिक अरेस्ट हुआ, सेंटा क्रूज एयरपोर्ट पे, जहां आजू बाजू में हर जगह डिफिब्रिलेटर है, लेकिन पड़े हुए, लेकिन किसको समय नहीं मिला समझने के लिए कि कार्डिक अरेस्ट हुआ। और बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए, लेकिन तो प्रेशियस जो क्षण थे वो चले गए, एंड वी लॉस्ट what a person who could have taken Nasik to the next level। तो ये कार्डिक अरेस्ट इतना हर यंग एज में है, मिडिल एज में हमने देखा, और ओल्ड एज में तो होता ही है। आपने डिफरेंस आप लोग ने समझ लिया। और अभी हम तो ये जो होता है कि अचानक आदमी अच्छा है, सही तरीके का है, और कुछ वार्निंग नहीं होती, इमीडिएट ड्रास्टिक सडन कोलैप्स, कोई ब्रीथिंग नहीं, और पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है। तो और उसके पहले कभी कभी जरूरी नहीं कि बिल्कुल एक क्षण में हो जाता है, हम देखते भी हैं, मेरे पास कुछ वीडियो क्लिप्स भी हैं, समय मिलेगा कि जिम के अंदर, आई थिंक कैन बी अदर सम पीपल आर, या सो प्रीसीडिंग सिम्टम्स होते हैं। कभी पेशेंट कह सकता है कि मुझे थकान आ रही है, मुझे फेंटिंग हो रही है, मुझे ब्लैकआउट हुआ थोड़ा समय के लिए, वीकनेस, और कभी पैल्पिटेशन या वॉमिट करके आदमी कोलैप्स हो जाता है। और लोगों में ये प्रॉब्लम, वो सब कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो डॉक्टर साहब, ये हम डॉक्टर थोड़ी हैं, ये हमारा काम नहीं है। ये बिल्कुल गलत ख्याल है। इसलिए ये अगर आप वर्कशॉप से अगर आप कुछ समझ पाए तो ये आप अपने मन से निकाल लीजिए, क्योंकि वो डॉक्टर उस समय पहुंच ही नहीं सकता अनलेस कोइंसिडेंटली अगर कोई डॉक्टर उस समय वहां पे रहा होगा। तो लोगों को डर होता है, किस बात का डर होता है कि अगर मैं फियर होता है, इनिबिशन, मैं ट्रेन भी नहीं हूं, और अगर मैं जाऊंगा तो पुलिस पूछेगी तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा पता बताओ, तुमको बुलाएंगे, मैं डिटेन हो सकता हूँ, अरे मैं तो काम पे जा रहा था, रास्ते में देखा,
तो मुझे विटनेस बुलाया जाएगा। और अगर हॉस्पिटल में ले गया तो हॉस्पिटल कहेगा कि भाई मैं तो उसको एडमिट कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू एडमिट हिम, पण जे सगळे बिल आहे ते तुम्हाला भरायला लागेल कारण तुम्ही आणलेलं आहे, तो जैसा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। तो उसके लिए हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, प्लीज हियर दिस वेरी केयरफुली, ये जो इनिबिशन जो है हमारे मन के हैं, जब तक आपको बताया नहीं जाए, इज अ गुड समैरिटन लॉ कि जो भी एक कार्डिक अरेस्ट या किसी प्रकार के पब्लिक में किसको आपने मदद की है उसको बहुत ही इज्जत के साथ ट्रीट किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं, चाहे उसका मेल हो, फीमेल हो, कोई भी रिलीजन हो, नेशनैलिटी हो, कास्ट और द ग्राउंड। दीज आर द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ गुड समैरिटन्स issued as a part of Supreme Court judgment dated 30th of March 2016। तो आपको अगर उल्टा हमने एक ऐसी मुहिम क्रिएट करनी चाहिए, अगर कोई अच्छा गुड समार्टियन है, उसने कोशिश की, पेशेंट नहीं भी बचा, फिर भी उसको अप्रिशिएट कीजिए कि उसने एक कोशिश तो जरूर की है, और अगर कोई बच गया तो जिंदगी भर के लिए ही विल बी ए हीरो फॉर लाइफ, उसका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। मैनी ऑफ द हमारे किंडल जो साइकोलॉजिस्ट है बताएंगे कि दैट मैन इफ ही बिकम्स अ हार्ट हीरो और ए हार्ट मार्शल, हिज एटीट्यूड, उसकी सोशल रिस्पांसिबिलिटी चेंज हो जाती है। तो अभी हम ये कोर पे आ जाते हैं। हमारी इंडियन सोसाइटी कैन बी किसका है? हाँ हाँ नहीं, जो भी है सब रक्षा, प्लीज या प्लीज। सो हमारी इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थेसियोलॉजिस्ट जो है, 3 टाइप के हम लोग वन इज कॉम्प्रेशन ओनली, दैट इज कॉल्ड एज लाइफ सपोर्ट कॉल्स, कॉम्प्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट। मैंने म्यूट किया है लेकिन वो वापस अनम्यूट कर रहा है। क्या रखना क्या? हेलो हाँ हेलो, काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ। या सो दिस एनेस्थेसियोलॉजी सोसाइटी की कॉल्स यानी कि कॉम्प्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट फॉर कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, ये ले पर्सन्स के लिए जो आप और हम सीखने वाले हैं, और सिर्फ कार्डिक मसाज देना है, उसको कॉल्स कहते हैं। ये बाय स्टैंडर्ड्स के लिए होते हैं जिन्होंने ना तो ट्रेनिंग ली है, ना तो वो डॉक्टर्स हैं, ना पैरामेडिकल पर्सन्स हैं। ये आप लोग सब सीखेंगे। या तो हमें डर भी लगता है कि अरे मैं सिर्फ मसाज दूंगा, वो आदमी जो पड़ा हुआ है उसके मुंह में इन्फेक्शन होगा, आजकल तो कोविड का और भी डर है, तो मैं माउथ टू माउथ नहीं दूंगा। तो ये भी बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। कॉल्स के बारे में हम कॉल्स की बात करेंगे। नंबर 2 एंड नंबर 3 बेसिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव लाइफ सपोर्ट, वो पैरामेडिक्स के लिए होते हैं जो आउटसाइड द हॉस्पिटल है। मानो जब एम्बुलेंस आ जाती है तब फिर वो इंट्यूबेट करेंगे और ये रेस्पिरेशन भी देंगे। और जो तीसरा है ट्रेन पैरामेडिक्स एंड मेडिक्स इनसाइड द हॉस्पिटल, जहाँ पे वो पेसिंग भी कर सकते हैं और पेशेंट को आईसीयू में लेके या सीधा कैथ लैब में लेके जाके इंट्राऑटिक बलून पंप या वगैरह और चीजें जो हैं वो हम कर सकते हैं। तो हम सिर्फ कॉल्स के बारे में बात करेंगे, सिर्फ कार्डिक मसाज। और ऑप्टिमम आउटकम क्या होता है? मेन चीज है कि पहले आपके रिफ्लेक्सेस क्विक होने चाहिए, बिकॉज उसके बाद सिर्फ 3-4 मिनट है, प्लीज अंडरस्टैंड। और वो जो पर्सन है वो आपका रिलेटिव भी हो सकता है, क्योंकि 10% अकर्स इन द होम्स, तो आपका कोई फैमिली मेंबर हो सकता है। और बाकी जो है जो 90% इज आउटसाइड द हॉस्पिटल। अगर आपने सीखा है उसी तरह अगर आपका भी कोई अनफॉर्चुनेट रिलेटिव होगा और किसी ने सीखा होगा उसकी जान बचाएगा, यू विल बी ग्रेटफुल टू हिम फॉर योर लाइफ। तो अर्ली रिकॉग्निशन, एक्टिवेशन, वेरी गुड हाई क्वालिटी। अभी सिर्फ कार्डिक मसाज कैसे देना है हम बहुत ब्यूटीफुली आपको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। और अर्ली डिफिब्रिलेशन जब एज जो है वो हम सेकेंड पार्ट में लेंगे। आज शुरुआत में अगर सब कुछ करें तो लोगों को लगेगा अरे ये तो बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन जब तक हम एडीज इंस्टॉल नहीं करते नासिक में इन अ फेज में, हम सिर्फ सीपीआर के बारे में आज बात करेंगे। तो कॉल्स में क्या होता है कि अर्ली रिकॉग्निशन है और चेस्ट कॉम्प्रेशन करना है, करते रहना है जब तक आपकी एम्बुलेंस या मेडिकल पर्सनल वहां आ नहीं जाते। और उसमें एक और भी चीज है कि एम्फसाइज करते हैं कि इंटरप्शन अवॉइड करना है, और मेनली ओनली ऑन सीपीआर उसके लिए आप लोगों ने करना है, डॉक्टर पैरामेडिक होने की कोई जरूरत नहीं। और ये जो कॉल्स के हैं ये हमारे गाइडलाइंस हैं फॉर्म बाय द इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थेसियोलॉजिस्ट,
फॉर रिससिटेटिंग कार्डिक पेशेंट। ये बिल्कुल सरल है, इजी टू रिमेम्बर है, और कोई भी मिनिमम ट्रेनिंग करने के बाद आदमी ये कर सकता है। हम एक ही बार नहीं, हम बार बार भी करेंगे। खास करके जो नहीं कर पाता और जो अनविलिंग होता है कि भाई मैं माउथ टू माउथ तो नहीं दूंगा, रास्ते में पता नहीं उसके मुंह में वो कुछ वॉमिटस भी था, पान है, लाल कलर दिख रहा था, इन्फेक्शन होगा, कोविड होगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर आपने सामने देखा, द बेस्ट रिजल्ट अकर्स जो विटनेस है, आपने देखा कि आदमी गिरते हुए या कोई कहे अरे अभी मैंने देखा, आप प्लीज आइए, तो उसके ऊपर मैक्सिमम चांस है उसको बचाने का। अगर कोई आदमी रात से ही पड़ा हुआ है रोड पे और सवेरे तक वो बोलते हैं ना बिल्कुल कोल्ड हो गया है, तो शायद क्या वो तो बचे, वो तो ऑलरेडी डेड है सिंस मेनी आवर्स। तो वो पहली चीज है जो इमीडिएट, जो कहते हैं जो विटनेस कार्डिक अरेस्ट होता है, उसमें सबसे जल्दी आपको एक्ट करना है, क्योंकि उसी में आपको बेनिफिट मिलेगा। पर उससे पहले आपको अपना प्रोटेक्शन भी देखना बहुत जरूरी है। अगर एक आदमी रोड के बीच में गिरा है तो आप रोड के बीच में तो सीपीआर नहीं देंगे, यू में भी रन ओवर बाय अ कार। तो उसी तरह अगर फायर है, फायर से उसको निकालना है, आपको भी दूर जाना है। और कहीं लाइव वायर गिर गई या किसको ड्राउनिंग हो, वो तो अलग चीज है। रॉइड्स अगर हो रहे हैं और आदमी को देख के डर के गिर गया, तो आपको पहले अपने आप को भी प्रोटेक्ट करना है। यू हैव टू इन्फॉर्म द पुलिस, यू हैव टू इन्फॉर्म द अथॉरिटीज कि मैं ऐसी सिचुएशन में हूँ एंड एक कार्डिक अरेस्ट मैंने देखा है। और फिर उसके बाद में शिफ्ट टू अ सेफ प्लेस, मतलब उसको बिल्कुल थोड़ा एक सेफ जगह में ले जाना है, फायर से दूर। तो विक्टिम का जो रिस्पॉन्स चेक होता है, उसके सामने आना है, हेलो फेस करना है, टैप ऑन द शोल्डर्स, एंड शोल्डर्स पे टैप करके आप उनको बताना है कि आप कैसे हैं। ये मेरा मैनिक्विन दे दो, या आप कैसे हो, ठीक हो गए नहीं, पहले क्यों बताना है, क्योंकि बहुत बार ऐसे रहता है। ये अभी हमारा जो मैनिक्विन है, तो आप देख पा रहे हैं, तो ये जो मैनिक्विन है, तो समझ लो ये हमारा पेशेंट है, तो उसको हम शोल्डर पे टैप करेंगे, बजाय कि मुंह के ऊपर। नेक को कभी पकड़ना नहीं, नेक से हिलाना नहीं, क्योंकि उसको सर्वाइकल इंजरी हो सकती है। अगर आप लोग उठा के भी लेके आ रहे हैं पेशेंट को, तो प्लीज आप देखो कि उसको शेक नहीं करना है, नेक मूवमेंट्स नहीं करना है, बस फेस पे भी टैप नहीं करना है, शोल्डर के ऊपर, ताकि उसको और इंजरी ना हो। अगर वो रिस्पॉन्ड करता है कि भाई मैं ठीक हूं, या कुछ मूवमेंट करता है, या उसकी श्वास चल रही है, तो इसका मतलब कि ये कार्डिक अरेस्ट नहीं है, अनलाइकली। और फिर अगर हम देखें कि अगर हमने टैप किया, उसकी श्वास भी नहीं चल रही, उसकी नब्ज भी नहीं मिल रही, वो भी हम देखेंगे, इसका मतलब है कि उसको कार्डिक अरेस्ट हुआ है, और हमें इमरजेंसी मेडिकल सिस्टम को एक्टिवेट करना है फॉर अर्ली ट्रांसफर ऑफ द विक्टिम टू नियर बाय हॉस्पिटल। और आजकल मोबाइल तो हर एक के पास है, आजकल तो जो मांगने वाले होते हैं उनके पास भी मोबाइल्स होते हैं। तो जो रेस्क्यूअर होता है अपने फोन से करके, और प्लीज रिमेंबर कीजिए आपका स्पीकर ऑन कीजिए, क्योंकि अगर आप अकेले हैं और आप स्पीकर ऑन नहीं है, तो आप या तो एक हाथ आपका एंगेज हो जाता है बात करने में। स्पीकर अगर आप ऑन रखेंगे तो लाउड वॉइस में भी आप बात कर सकते हैं, जैसे 108 है, पैन इंडिया नंबर है, और बहुत सारी स्टेट में है। हमारे अपने भी एम्बुलेंस है विच इज नोन टू मेनी पीपल। इनफैक्ट हम लोग अपने एम्बुलेंस के ऊपर QR कोड भी लगाया हुआ है कि जो भी स्कैन करता है सीधा हॉस्पिटल कनेक्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हम कैरोटिड पल्स, जो हमारे शरीर से जो मेंदु को जाने वाली सबसे बड़ी रक्तवाहिनी होती है, इसको कैरोटिड पल्स होती है, जो बहुत आसान है दिखने में, आप पाल्पेट करने में। और ये एक बाजू और दोनों बाजू मत दबाइए, एक बाजू कीजिए या दूसरे बाजू। और अगर है आपको दिखाई दे रही है पल्स, उसके लिए आपने प्रैक्टिस रोज करना है, सिर्फ 5-10 सेकंड लगाने, मिनट्स नहीं लगाने, क्योंकि उसके ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, एंड हर मिनट में 10% चांस है उसका बाहर नहीं आने का। और अगर देखें कि छाती भी देखने की ब्रीथ कर रहा है कि नहीं, अगर ब्रीथ नहीं कर रहा, यानी कि आप हाथ रखें और हाथ नहीं हिल रहा, या तो आप चिन को थोड़ा पीछे करके देखें, तो आप देखें कि उसमें से आवाज ये नहीं आ रही है ब्रीथिंग की, तो इसका मतलब कि उसको रेस्पिरेटरी अरेस्ट भी है। लेकिन रेस्पिरेटरी अरेस्ट में कभी कभी गैस होता है, या एगोनल ब्रेथ हम कहते हैं, यानी कि श्वास रुकने के पहले अचानक श्वास नहीं रुक जाती, थोड़ा टाइम तक ऐसे, तो वो भी मतलब उसका हार्ट बंद हो चुका है लेकिन थोड़े से गैस रह गए, उसका मतलब तो भी पल्स नहीं मिल रहा है, तो अब वो कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट में है। और फिर भी
अगर आपको श्वास नहीं दिख रही है, पल्स नहीं है, तो आप एज्यूम कीजिए एवरीवन इज देयर टू प्रोटेक्ट यू इंक्लूडिंग द कोर्ट, द मेडिकल फ्रेटर्निटीज, कि आपने उसको सही जानकारी ली है, आप ट्रेन भी हैं, और इमीडिएटली ये सब करने में 10 सेकंड लगने चाहिए। 10 सेकंड से प्लीज ज्यादा समय मत ये लीजिए। सो कुछ कंडीशन होते हैं जहां पे रहते हैं। अभी क्या हो सकता है, जब श्वास चल रही है और नब्ज भी मिल रही है, तो इसका मतलब है कि उसको कार्डिक पल्मोनरी अरेस्ट नहीं है, उसको ब्रेन हेमरेज हुआ होगा, ट्रोमा हो गया होगा, तो उसको अपने मसाज नहीं देना है, क्योंकि पल्स आपको मिल रही है। हम हर 2-2 मिनट तक इन्फॉर्म तो करना है इमरजेंसी सिस्टम को कि आदमी अनकॉन्शियस है, उसकी शुगर कम हो गई होगी, तो हर 2-2 मिनट चेक करो, क्योंकि अगर उस समय हार्ट बंद हो जाए तो सीपीआर शुरू करना है। एट दैट पॉइंट ऑफ द टाइम अगर ब्रीदिंग नॉर्मल है और पल्स है तो कार्डिक मसाज नहीं देना है। लेकिन अगर उसकी श्वास चल नहीं रही है और पल्स नहीं मिल रही है, नब्ज नहीं मिल रही है, तो रेस्पिरेटरी अरेस्ट है, मतलब उसकी श्वास रुक गई लेकिन हार्ट की गति अभी भी चल रही है, तो उसमें आपने माउथ टू माउथ ब्रीथिंग दे सकते हैं। आपका फैमिली मेंबर होगा तो उस समय आप नहीं सोचेंगे कि उसका माउथ का हाइजीन क्या है या उसको कोविड हो सकता है या नहीं। तो 12 ब्रेथ्स एवरी मिनट यूजिंग माउथ टू माउथ आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये आजकल ये इतना सिंपल डिवाइस आ गया है जो कि हर एक फैमिली फिजिशियन, जैसे हर एडी के साथ में हम लोग ये करेंगे। देखो अगर यहाँ पे आप देखिए चेस्ट में ऊपर, कैन यू सी द चेस्ट राइजिंग? सो सिंपल, मैंने माउथ टू माउथ भी नहीं किया, दूर भी रखा है, डायरेक्ट भी कर सकता हूं, और यू कैन सी द चेस्ट राइजिंग, तो यू कैन डिलीवर। बट फिलहाल हम रेस्पिरेशन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। जब नो ब्रीथिंग नो पल्स तो कार्डिक अरेस्ट है, उसमें हाई क्वालिटी सीपीआर देने हैं, और बीच में अगर चाहें तो हर साइकिल 30 साइकिल्स के बाद में आप वो थोड़ा 2 ब्रेथ भी दे सकते हैं। तो पहले आपका विक्टिम जो है वो सोफे पे गिरा हो सकता है, तो ये किसी सॉफ्ट पलंग पे होगा जहां गादी होगी, तो उसको इमीडिएटली हार्ड सरफेस पे रखना है। एंड सबसे बेस्ट जगह है फ्लैट सरफेस पे रख लेना, जमीन पे, और स्टार्ट गिविंग चेस्ट कॉम्प्रेशन इमीडिएटली। तो ये साइकिल्स ऑफ 30 चेस्ट कॉम्प्रेशन होते हैं विच शुड बी इनिशिएटेड। तो हम उसको पलंग से उठा के, जैसे देखो अभी हमने नीचे रख दिया है, तो हमने कोई बड़ा हॉल या ऐसे कुछ वो नहीं रखा है। ये सोचो कि किधर ऑफिस में आदमी गिर गया है, तो इमीडिएटली हमने लेके उसको नीचे रखा है। और द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द चेस्ट, दो जिफॉइड प्रोसेस जो होती है ना, और ये जो जिफॉइड प्रोसेस है, ये हमारा चेस्ट है, ये एब्डोमेन है, तो यहाँ पे रिब्स है, तो यहाँ रिब का नीचे का जिफॉइड प्रोसेस है, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक हाथ को राइट ही है लेफ्ट ही है, स्ट्रेट रखना है, दूसरा हाथ इंटरलॉक करना है ऐसे, और इमीडिएटली भी स्टार्ट। ये देखिए आप, ये हमारे पास ये जो एक्टिवेट हो गया है, अब मैं सही तरीके से कर रहा हूँ, 2 ग्रीन लाइट्स आती हैं, मैं जैसे ही स्लो हो जाऊं, ये फास्ट करूंगा तो येलो बीच में वार्निंग दे रहा है कि आप 125-20 से ऊपर जा रहे हैं। मैं आपको ये डिटेल में, हमारा वर्कशॉप अभी होने वाला है, ये शुरुआत में सिर्फ आपको बताने के लिए, फोकस इट बैक ऑन मी। तो आप उसी तरह से heel of the hand 2 fingers above it and for chest compression, इस तरह से आपका पोजीशन होता है। और ये हमने अभी आज शाम को ही बनाया है। ये देखो हमारे प्रशांत हैं और पाटिल, दे आर वेरी स्टडी, और वो किस तरह से बैठा हुआ है, उसका ये कॉम्प्रेशन दे रहा है, और उसका जो एल्बो जॉइंट है लॉक है। अगर आप एल्बो जॉइंट को मोड़ दें तो आपका पावर ट्रांसमिशन नहीं होगा, और सीधा आपकी, ये देखो पूरा ये नील डाउन पोजीशन में है, अपने स्पाइन को भी उसने सही रखा है, स्पाइन पे भी प्रेशर नहीं दिया है, और वो तरीके से कॉम्प्रेशन दे रहा है। एक जमाने में होता था कि हम एबीसी ऑफ रिससिटेशन कहते थे, लेकिन अभी सीएबी हो गया है। एबीसी मतलब एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन, लेकिन अभी हम लोग सीएबी, पहले हम सर्कुलेशन के बारे में, एयरवेज और ब्रीथिंग बाद में हो गया। क्या रेट से देना चाहिए? 1 सेकंड में 2 बार, यानी कि 1 मिनट 60 सेकंड में 120 बार। और कितना दबाना चाहिए?
कॉम्प्रेशन डेप्थ जो है 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि समझ लीजिए 2 इंच, और 6 सेंटीमीटर से ऊपर नहीं होना चाहिए। कभी बहुत ही वृद्ध पेशेंट हो और आप करें और कड़क की आवाज आए कि कहीं बोन ब्रेक हो गई, तो अरे माय गॉड, ये तो पुलिस केस हो जाएगा, मैंने हड्डी तोड़ दी। यू आर प्रोटेक्टेड बाय लॉ। अ साइन ऑफ ए गुड सीपीआर में कभी भी रिब फ्रैक्चर हो सकता है, एक्सेप्टेड है। हम लोग भी करते हैं, कितनी बार हम लोगों ने कैथ लैब में, सीरियस पेशेंट आईसीयू में, इमरजेंसी कॉल्स में सीपीआर दिया है और रिब फ्रैक्चर हुआ है, जो कि इज अ साइन कि यू हैव अटेम्प्टेड वेल। बजाय कि मैंने बहुत बार लोगों को देखा ऐसे वो सीपीआर दे रहे हैं कि जैसे कोई फेशियल मसाज कर रहा है, तो स्किन ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इट शुड बी इफेक्टिव, इट शुड बी 5 सेंटीमीटर ज्यादा। तो अभी मैं बताऊंगा किस तरीके से हमारा ये मशीन आपको बताएगी आप सही कर रहे हैं कि नहीं, एंड वी विल टेल यू। तो कॉम्प्रेशन जब हम शुरू करते हैं, उसके लिए कोई फॉर्मल आपको डॉक्टर पैरामेडिक होने की जरूरत नहीं। अगेन आई एम रिपीटिंग सेम, द हैंड शुड बी केप्ट लाइक दिस, कंप्रेस एट रेगुलर, इरेगुलर नहीं होना चाहिए। तो एक सेट ऑफ 30 कॉम्प्रेशंस करना है, और उसके बाद में आप काउंट भी करना है की 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 6 असं आपण काउंट करताना 30 परत जायच्या। आपली रेट पाहिजे 120 पर मिनिट, आणि कॉम्प्रेशन डेप्थ 5 सेंटीमीटर। कसं तुम्हाला माहिती पडणार की मी 5 सेंटीमीटर केलेलं आणि 6च्या वर नाही? तुमच्यावर हे जो आपला सीपीआर करणार आहे, तुम्हाला फीडबॅक मिळणार आहे, तो पण मी दाखवणार। फक्त एक लाइट सोर्स पण है, आणि फक्त लोग क्या करते हैं कि उसको दबा के रखते हैं और चेस्ट को रिकॉइल करने नहीं देते। अगर चेस्ट को रिकॉइल नहीं करने देंगे तो उसमें सक्शन कैसे क्रिएट होगा? तो ऐसे देख के छोड़ देना है, देख के छोड़ देना है। अगर आप देख के ऐसा ही उसको आने नहीं देंगे तो मशीन ये भी बताएगी कि आप सही तरीके से प्रेशर उठा नहीं रहे। तो ये बिल्कुल मिनिमम ट्रेनिंग है जो ग्रुप्स के लिए जब हम करेंगे और डिटेल्स में जाएंगे। आज शुरुआत है, इस करके हम उसको सिंपल बनाने चाहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके नो इंटरप्शन। फिर बात करते करते अरे भाई देख को आया कि नहीं, एम्बुलेंस आई कि नहीं, अब 2 मिनट आपका हाथ इधर चला जाता है। जब देखो यार तुम गर्दी मत करो, तुम बात भी करते जाओ, लेकिन ये बंद नहीं होना चाहिए। इवन आपका इंटरप्शन भी हो गया तो भी आपको वो मशीन वार्निंग देगी। तो ड्यूरेशन कब तक कर रहे हैं? और एम्बुलेंस तो आई नहीं, तो डॉक्टर ने बताया 30 के साइकिल्स में दो। मैं थक गया, दूसरा आदमी आया वो भी दे रहा है। 15 मिनट हो गए हम लोग लगे हैं, और कुछ तो लोग भी थे जो भी चली गई। यू हैव टू कंटिन्यू टिल यू सी सम मूवमेंट। या तो उसका पल्स आ जाए, या तो बिल्कुल आप एग्जॉस्ट हो गए तो आप कुछ कर नहीं सकते हो, दूसरी बात है, या उसमें कई मूवमेंट होने लगे जो कि जीव आ जाएगा, तो बहुत खुशी की बात होती है। जैसे ही आप देखें कि उसमें साइंस ऑफ लाइफ आ गई, कि उसने श्वास लेना शुरू किया, उसकी पल्स आ गई और मूवमेंट करने लग गया, तो फिर आप उसको लैटरल पोजीशन में डालना है। यानी कि पहले तो पीठ पे सोया है, साइड पे क्यों डालना है? क्योंकि जैसे ही उसमें होश आएगा तो बहुत बार ऐसे होता है कि उसके सिक्रीशंस हैं, वॉमिट कर देगा, वो एस्पिरेट करके निमोनिया हो सकता है, एस्पिरेशन न्यूमोनाइटिस कहते हैं, इससे और सीरियस हो जाएगा। तो साइड पे टिल करेंगे तो उसके लिए फिर वो आप वॉमिट एस्पिरेट नहीं करेंगे, राइट साइड में करें या लेफ्ट साइड में, वो आपके जो कन्वीनियंस पे है। तो किन लोगों में ये सीपीआर इफेक्टिव नहीं होगा, इसका मतलब किस खास करके जो डूब गया है, तो उसमें लंग्स में पानी भर गया है, तो उसको रेस्पिरेटरी अरेस्ट है, कार्डिक अरेस्ट नहीं है। फिर भी आपको कार्डिक पंप भी करना है और वेंटिलेट भी करना है। अगर किसको ट्रोमा हुआ, हेड इंजरी हो गई और ब्रेन उसका चला गया, तो हार्ट तो चल रहा है, या अगर आप हार्ट बंद भी हो गया, तो जब तक मेन कारण को आप ठीक नहीं करेंगे, या एस्फिक्सिया हो गया, धुएं में आप फायर वाले उठा के लाए, धुएं में बिल्कुल वो बेहोश हो गया, तो लंग्स में पूरा स्मोक चला गया, तो उनको वेंटिलेशन की जरूरत है। बट ट्रेडिशनल सीपीआर जो होता है कि कार्डिक मसाज भी देना, और जैसे मैंने बताया चिन को उठा के, बड़े वो अम्बुस बैग की भी जरूरत नहीं है। आजकल बिल्कुल सिंपल ये डिवाइस है, इसको फोल्ड करो, छोटा हो जाता है। हर एक आदमी को हर सोसाइटी में, बिल्डिंग्स में भी खरीद सकते हैं, हार्डली जस्ट फ्यू ₹100 जो है, दीज आर वेरी गुड क्वालिटी। उसके बीच में फिल्टर्स भी हैं, ताकि अगर आपको डर लगे कि भाई मैं इन्फेक्शन हो जाएगा, वो भी नहीं होता। तो ये सब चीजें उपलब्ध हैं, ये रखना पड़ता है। जैसे आप हर सोसाइटी में इमरजेंसी बॉक्स रखते हैं, बच्चे गिर जाते हैं, टूल में अपना बैंडेड टाइप रखते हैं, ऐसे ये सिंपल चीजें भी रखना जरूरी हो जाएगा। और एनी अटेम्प्ट एट रिससिटेशन इज बेटर
देन नो अटेम्प्ट। नहीं करने से कि यार वो तो बताया था, वो 3 किस्म के, अभी मैं भूल गया ये कॉल्स है कि क्या है, अरे नहीं भी समझ में आता है, तुम कार्डिक मसाज कर दो, दैट इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एवरीवन विल सपोर्ट यू, बी ए कार्डिक हीरो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो विटनेस कार्डिक अरेस्ट, यानी कि अगर आपने देखा किसको गिरते हुए, तो वो तो सचमुच जो है वो सबसे ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, बजाय कि एक ओल्ड आदमी है, काका है, तो रात्रि गेले घर के आदमी भी सवेरे जेंट्स काम पे चले गए, फिर वो लेडीज सोचती है काका तो 4 बजे उठता है, आज चाय के लिए बुलाया नहीं, और देखते हैं तो ये तो काका तो ऑलरेडी लेफ्ट आवर्स बैक। उस आदमी को जब रात से जो ऐसे ही पड़ा है, उसको आप सीपीआर क्या करेंगे, इज ऑलरेडी डेड। सो हमें एक कॉमन सेंस भी यूज करना है, बट इमीडिएटली भी हमारे यहाँ जो पेशेंट्स आते हैं हॉस्पिटल में, फॉर सम टाइम वी डू गिव सीपीआर जब हमें पल्स नहीं भी मिलती है, और एक पैडल्स रखते हैं हम डिफिब्रिलेटर के, जो अभी सामने आपके, वो पैडल्स में भी हमको ईसीजी स्ट्रिप मिलता है, सामने की जो मशीन है, अगर उसमें भी हमें दिखे अगर ईसीजी में स्ट्रेट लाइन है सीपीआर देने के बाद भी, क्योंकि अगर हमें वीफिप दिखता है तो हम उसको शॉक भी दे सकते हैं, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। सो ये चीजें कुछ आपको बताने चाहता हूँ। ये वही एक डायग्राम में दिया हुआ है कि पहले रिकॉग्नाइज करना, अर्ली चेस्ट कंप्रेशन, अर्ली ट्रांसफर, और ये सेम जो 30-30 के साइकिल्स में एक अच्छे चार्ट में बना के दिया हुआ है, अगर वो मूव होता है या नहीं मूव होता, मूव कैसा होता है कि वो खांसी करने लगे या बात करने लगे, आवाज आए, तो उसका मतलब हार्ट शुरू हुआ, तो ही वो आवाज निकाल सकेगा। हार्ट कार्डिक अरेस्ट का पेशेंट कभी भी बात नहीं करता। तो और उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, हम डिफिब्रिलेटर के बारे में भी बताएंगे। वो जब मशीन आ जाती है उसमें ऑटो प्रॉम्प्ट्स होते हैं, ये हमारा जो है एम्बुलेंस का ये मशीन है, इट इज वेरी हाई एंड। इसके अंदर वो ये देखो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, अप्लाई पैड्स, वो सब कुछ इंस्ट्रक्शन देगा, वो खुद आपको जानकारी देगा कहाँ लगाना है, क्या करना है। अगर शॉक की जरूरत नहीं है तो शॉक नहीं देगा, शॉक की जरूरत है तो शॉक देगा। इनफैक्ट ये तो थोड़ा हाई एंड है, क्योंकि इसमें ईसीजी भी आता है, इसमें मॉनिटर भी आता है, पल्स, इसका ब्लड प्रेशर भी ले सकते हैं, प्लस ऑक्सीमेट्री भी कर सकते हैं, इससे आप पेस भी कर सकते हैं और शॉक भी दे सकते हैं। Sir, I have a doubt. Yes, yeah, so please, so let's come to the next. So ये AED के बारे में हम बात कर रहे हैं, और तो ऑटोमेटेड AICD यूजिंग एन ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर स्विच ऑन करना है। ये तो वॉइस प्रॉम्प्ट अभी वो बता रहे हैं ना, अप्लाई पैड्स, तो उसको, पर जब तक ये हम देख भी रहे हैं तब तक कॉम्प्रेशन चालू रखें, और वो फिर एडी खुद रिदम एनालाइज करेगा कि शॉक देना है कि नहीं। उस समय जब वो एनालाइज करता है तो आपको पेशेंट से थोड़ा दूर हटना है कुछ क्षणों के लिए, क्योंकि आपके हाथ का भी जो सिग्नल्स उसको कंफ्यूज नहीं करने चाहिए। सो डू नॉट टच, बंद कर दीजिए। एंड अगर वो बताए कि नो शॉक, तो आपको बटन प्रेस करना है ताकि वो गलती से अपने आप शॉक ना दे दे, और उसके बाद फिर से आप सीपीआर देना चालू करें। तो ये सब स्टेप्स होते हैं, वो हम डिटेल्स में हम जाएंगे। और अगर वो फिर भी नॉन शॉकेबल है, वो कहेगा कि शॉक नहीं देना है, तो आपने कार्डिक मसाज चालू करना है। और ये कितना जूल्स है वो हम बाद में देखेंगे। हम लोग तो मैक्सिमम एडल्ट को 200 जूल्स होते हैं, उसका जो पावर है उससे हम दे देते हैं। तो जो ये तो यूएसए अपना का है 911, हमारे यहाँ 108 है। सीपीआर शुरू करना है कोविड के समय में, खास करके एक किसी एडल्ट का हार्ट बंद हो जाए और आपको चिंता है कि अब उसको कोविड हो सकता है, इसलिए उसकी मृत्यु हो गई, और फिर भी आपको सीपीआर करना चाहिए, क्योंकि आप टॉन्स कर रहे हैं, ओनली हैंड्स ओनली सीपीआर, अब माउथ टू माउथ नहीं कर रहे हैं। तो सेम चीज करेंगे, अपना 108 को आप फोन कीजिए, वहां का जो 911 है कि प्लीज कार्डिक अरेस्ट, एईडी या कार्डिक एम्बुलेंस भेजें। एक्स्ट्रा क्या करना है, आपका खुद माउथ से, आप आजकल बगैर मास्क तो आप जा ही नहीं सकते, तो आपके पास तो है ही है, और बहुत सारे लोग होते हैं तो जेब में एक्स्ट्रा मास्क रखते हैं, तो वो पेशेंट के माउथ पे रख दीजिए। अगर आपके पास मास्क नहीं है तो रुमाल रख लीजिए, कुछ भी कवर कर लीजिए, शर्ट के 2 बटन निकाल के ऐसा ऊपर कर सकते हैं, मतलब देयर आर मेनी वेज। तो यू कैन कवर योर माउथ, यू कैन कवर द पेशेंट्स माउथ। सीपीआर देने वक्त कपड़े निकालने की जरूरत नहीं होती है। बहुत बार एक और भी प्रश्न किसने पूछा था हमको कि अगर वो लेडीज पेशेंट है, अगर हम उसको दें तो बहुत ही ऑब्सीन लगेगा, ऐसा नहीं है, आप किसकी जान बचा रहे हैं। और खास करके जब आप एईडी देते हैं
एडी कभी भी कपड़ों के ऊपर नहीं दिया जाता है, शॉक डिफिब्रिलेटर डायरेक्ट स्किन के ऊपर। तो लेडीज के यहाँ ब्रेस्ट होता है, तो हर एडी के अंदर एक छोटी कातर होती है, कैंची, आपको वही पार्ट काटना है जितना कि, और लगा के उसको शॉक देना है, उसकी जान बचानी है। तो सीपीआर करना है और एडी, ये सब वही स्टेप्स में दिया है कि आपके हाथ देखो, पहले पूछना भाई कैसे हो, एम्बुलेंस को बुलाना, ब्रीथिंग के बारे में चेक करो, ब्रीथिंग नहीं, पल्स नहीं, और आपके हाथ रखो सेंटर ऑफ द चेस्ट एंड पुश हार्ड एंड फास्ट 2 times a second। एंड इफ यू हैव गॉट ये जो ट्रेनिंग है 30 पुश के बाद में 2 ब्रेथ, अगर आपको ब्रेथ नहीं देना है तो भी 30 सेकंड के साइकिल दूसरा आदमी आके हेल्प कर सकता है, आपको रिलीफ मिलेगा। तो ये होता है। ये जैसे हमने बताया कि ये हमारी एम्बुलेंस है, इसमें हम ये एडी जो है इसमें मॉनिटर्स, और अगर पेशेंट, ये देखिए आप, ये एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर भी है और ये पेसमेकर, दोनों काम करता है। उस समय ये डिफिब के पैड को हम निकाल देते हैं। तो ये सब तब तक एम्बुलेंस जब तक आ जाती है तो ये सिर्फ फिर वो टेक ओवर कर लेते हैं, लेकिन तब तक के लिए मेन रोल आपका है। जो एम्बुलेंस वाले आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, वो सेकेंडरी, मेन बचाने वाले आप ही होंगे। तो इसीलिए आप ये देखिए, एक इटालियन फुटबॉलर के बारे में दुविधा देखिए कि ये मर गए, इतना फिट था, ये देखो पहले एक बार गिरा और दूसरी बार चक्कर आया, फिर दौड़ने की कोशिश किया, चक्कर आया और गिर गए, और वो किसी ने देख लिया, अरे आप गेम रोको, और ये देखो इमीडिएटली लोग उसकी तरफ दौड़ पड़े, उसको सीधा किया, उसके फेस को टैप किया, और एम्बुलेंस आने को कितना समय लगा, लेस देन हाफ ए मिनट। इमीडिएटली आप देखो एम्बुलेंस भी पहुंच गई। लेकिन आप ध्यान से देखो गलत क्या हो रहा है, सब लोग उसको लेके जा रहे हैं लेकिन कार्डिक मसाज कोई नहीं दे रहा। इधर ये हर जगह में भी होता है, और वो आदमी नहीं बच सका, दैट फुटबॉलर डाइड। ये देखिए आफ्टर कोलैप्सिंग, अ वेरी स्टर्डी, मतलब फुटबॉल खेलने वाले तो आम आदमी से भी ज्यादा उनका स्टेमिना कितना होता है, एक यंग आदमी। और ये देखिए, तो अभी हम नेक्स्ट वही चीज रिपीट हो रही है। एक और उदाहरण दे रहे हैं कि जिसको ऐसे मालूम था कैसे होता है, तो उसके अंदर ये जो हम एडी बाहर से करते हैं, उसके अंदर एआईसीडी लोग बिठाते हैं, और वो उसको जब अरेस्ट होता है तो क्या होता है, ये देखो ये गिर गया, ये रियल लाइव है, हाँ, और गिर गया, सब लोग उसकी तरफ भागते हैं, इससे पहले कुछ हो जाए। अचानक देखो उसको झटका लगा, मतलब अंदर की मशीन ने रिकॉग्नाइज करके अंदर से उसको शॉक दिया, और इससे पहले कि एम्बुलेंस पहुंचे वो उठ के बैठ गया। ऑफ कोर्स उसको गेम से निकाल के हॉस्पिटल लेके जाया गया। हमारे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जिनमें हार्ट वीक हो जाता है, और फिर हम ये एआईसीडी बिठाते हैं। डॉक्टर याश लोखंड वाला तो नेशनल अथॉरिटी है इसके ऊपर, हम लोग ने भी काफी केसेस किए, और ये पेशेंट्स अभी भी बोलते हैं, जैसे वकील है कि मैं सब कोर्ट में था, आर्ग्यू कर रहा था, अचानक मुझे झटका लगा तो मैं डर गया, लेकिन मुझे बहुत शॉक लगा, ऐसे शॉक लगा, जिंदा तो हो, खुश रही है। सो दिस इज हाउ यू कैन गिव अ सेकेंड लाइफ। लेकिन अभी हम आप लाइफ दे सकते हैं, ये सब चीज होने की जरूरत नहीं है। फिर से देखिए वो गिर गया, लेकिन उसके खुद के जो अंदर बिठाया हुआ जो एआईसीडी है, जो अंदर डिफिब्रिलेटर, जो छोटा सा यंत्र है चेस्ट के अंदर, हार्ट के अंदर वायर डाल के उसने बचा दिया। ये अभी हमारे जो हम ट्रेनिंग देते हैं, हेलो सर, आई हैव अ डाउट बताते हैं कि जब हम शुरुआत करेंगे तो पहले कि अगर आपकी हार्ट रेट 60 से कम है तो रेड सिग्नल देगी, जब थोड़ा अच्छा होने लगेंगे तो येलो देगी, फिर आप 80 से 90 100 तक जाएंगे तो ग्रीन, अगर आप सही कर रहे हैं तो 2 ग्रीन होगा। अभी आपके सामने डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, और अगर बहुत ज्यादा भी तेज कर रहे हैं तो येलो कलर का ब्लिंक करेगा कि मतलब आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं। तो उसी तरह आपको आइडिया मिलेगा, और ये कॉम्प्रेशन जो बंद करेंगे तो वापस रेड पे आ जाएगा। हर एक आदमी जो ये प्रैक्टिस करता है उसके ब्लूटूथ से हमें पता चलेगा कि वो सही कर रहा है या नहीं कर रहा है, और हम वो पूरा उसका हम लॉग बना सकते हैं, उसको सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। एंड दैट इज अ वेरी साइंटिफिक वे। आपने प्रेस कितनी बार किया है, आपको रिकॉइल आपने बराबर किया कि नहीं, कितना बीच में आपने रोका है, और एक उनको एक किस्म का एक सर्टिफिकेट बन जाता है। ये एक मजाक हो गया है। लास्ट स्लाइड है मेरी, ये देखिए कि लोग बता रहे, ये अभी 10 साल पुरानी स्लाइड है कि एआईसीडी के बारे में इतना लोगों में ये था कि अरे क्यों तुम इतना मेहनत करते हो, खाओ पियो ऐश करो, मरना तो एक ही बार है, पर एडी लगा के जरूर रखो,
वो भी मैनुअल, ये तो जिस कार्टून, नॉट अ रियल थिंग। ये देखिए, ये खा रहा है, पी रहा है, और फिर अचानक हार्ट अटैक। और तो पर वो आदमी ने, उसने अपना एक डिफिब्रिलेटर लगा के रखा होता है, हाथ उसका चला जाता है और वापस जीवित होके खाना पीना उसका चालू है। ये दोस्त लोग हैं, इसी तरह लगा के बैठे हैं, इसको अटैक होता है, इसको भी अटैक होता है, ये अपने आप को एक शॉक दे देता है, बच गया, इसके पास नहीं होता और वो गया। तो मतलब लोगों ने एक इतना पॉपुलर है कि उसके ऊपर मजाक करना भी कर दिया कि उसको आप पिज्जा भी गर्म कर सकते हैं, आप गाड़ी स्टार्ट कर सकते हैं डिफिब्रिलेटर से, आप घर में अपनी पत्नी आपके टाई भी प्रेस कर सकती है वगैरह। तो ये 911 बेकार है। ये सब दवाइयां जो हैं बहुत महंगी हैं, सिर्फ एक पोर्टेबल डिफिब्रिलेटर ले लीजिए और अपनी अच्छी तरह से जिंदगी बिताइए। तो लोग इस तरह से, आप सोचिए, मजाक करते हैं। और एक फ्यूचर क्या होने वाला है हमारा, तो ये मेरी स्लाइड की प्रेजेंटेशन खत्म हो गई है। एक खाली मैं आपको बताऊंगा जो बाहर देशों में शुरू हो गया है कि वो आपको ये अपना किधर है, ये नहीं डाउनलोड में आएगा, यूट्यूब किधर था, यूट्यूब, हाँ या नहीं, या। तो आजकल हम एम्बुलेंस नहीं पहुंचती है तो क्या करेंगे? तो अगर एम्बुलेंस नहीं पहुंचती है तो फिर अभी हम लोग ये फ्यूचर जो है, ड्रोन का समय आ गया है। और ये ड्रोन जो है, ये आपको एम्बुलेंस से भी पहले 4 मिनट के अंदर पहुंच जाएंगे। ये नासिक जैसी जगह के लिए ये बहुत ही अनिवार्य है। और हम लोग टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंट्री है, हमारे जो करंट लीडरशिप भी इस तरह प्रमोट है एडवर्टीजमेंट। या और आप देखेंगे कि जो बहुत सारी जगहों में ये मुहिम चालू हो गई है कि जैसे ही आदमी को अटैक होता है तो सबसे पहले आदमी, इससे पहले कि एम्बुलेंस पहुंच जाए, एम्बुलेंस ट्रैफिक में रहेगी, ट्रैफिक जैम है, तो उसके लिए क्या होता है, ये आखिरी एनिमेशन है। और फिर अभी हम सीधा इस पे चले जाएंगे वर्कशॉप पे। तो वो देखती है कि उसके फादर है, उसने श्वास लेना बंद कर दिया, 911 को उसने फोन किया, आप जल्दी आइए। और जैसे ही वो एक्टिवेट होता है तो एम्बुलेंस भी शुरू होती है। लेकिन उससे पहले हम लोग उसको मजाक में ड्रोनाचारी कहते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। जो ड्रोन है आजकल के, वहां के जो ड्रोन, ये रियलिटी है। मतलब ये तो एनिमेशन है, बट सचमुच वहां ड्रोन्स डिलीवर करते हैं कुछ यूरोपियन कंट्रीज में, और उसको बोलती है आप बाहर आ जाओ। जब तक वो बाहर दौड़ के पहुंचती है तो ड्रोन अपने आप उसकी गूगल लोकेशन से पहुंच जाता है। और ड्रोन ये कहता है कि मैं तुमको बताऊंगा। उसके अंदर कैमरा है जो इमीडिएटली कैमरा देख रहा है कि वो कहाँ पहुंचा पेशेंट तक। और ड्रोन फिर उसके अंदर डिफिब्रिलेटर निकलता है, क्योंकि ये एडी ड्रोन है, इसके अंदर ये सब मशीन पड़ी है। और इमीडिएटली वो पैड लगा के, जो हमने आपको स्टेप्स बताए थे, ऑटोमेटिकली वो उसको शॉक देता है। और इससे पहले कि एम्बुलेंस आए, एम्बुलेंस तो बाद में आएगी उसको लेके जाने के लिए, लेकिन काम सब हो गया, आप सोच लीजिए। सो दिस इज वेयर द फ्यूचर इज गोइंग टू बी। तो दिस इज माय प्रेजेंटेशन। और अभी हम सीधा लाइव वर्कशॉप पे जाएंगे। तो लेट अस सी। तो ये हमारा, समझ लीजिए, पेशेंट है, और प्रशांत विल टेल यू कि कैसे करना है। पहले लेट्स गो टू द, ये अपना ब्लूटूथ का भी हम एक्टिवेट करना है, वापस एक्टिवेट करें। तो आपको ये डाउनलोड करना होता है ब्लूटूथ का, और ये सीपीआर ट्रेनिंग के ऊपर हम जाना है। तो ये पूछता है कि कनेक्ट करना है, ये सर्च कर रहा है, और कनेक्ट करने के बाद में जैसे वो, हाँ, स्लाइड शेयरिंग, या स्लाइड शेयरिंग हम बंद कर देते हैं, या, और या डन। नहीं, सर्च कर रहे थे, और यू जस्ट प्रेस, हाँ, एक दो बार दो। तो ये देखिए, वो तब तक वो सीपीआर शुरू कर रहा है, कन्वेंशनल सीपीआर हम बता रहे हैं। और तो ये क्वेश्चन डन आ गया। तो ये जैसे ही हो गया कन्वेंशनल सीपीआर, वो बता रहे स्टार्ट करो। तो ये मॉनिटर कर रहा है, देखिए आप दोनों जगह पे देखिए, वो जिस तरह से कर रहा है तो ब्लूटूथ बताएगा, और साथ में विजुअल भी है। जरूरी नहीं है, ये देखो, ये
येलो लाइट बता रही कि थोड़ा फास्ट चल रहा है, दोनों जब ग्रीन लाइट होती है तो बता रहे अब ये वो सही है। जैसे उसकी स्पीड स्लो होती है तो एक लाइट बंद हो जाती है। मैंने आपको अलग विजुअल मीनिंग बताई। दोनों ग्रीन लाइट्स आती रहनी चाहिए। समझ लीजिए अगर वो प्रेशर ज्यादा दे रहा है तो भी वो वार्निंग देगा, अगर वो प्रेशर कम दे रहा है और हाथ अपना उठा नहीं रहा है तो ये भी बताएगा कि अब यहाँ पे भी फोकस कीजिए नजदीक आके कि आप उसको रिलीज नहीं कर रहे। और ये आप टोटली उसको मॉनिटर कर सकते हैं कि किस प्रकार ऑफ क्वालिटी सीपीआर दे रहे हैं कि नहीं। वजह है कि ये आके अब मैनिपुल लोग एक डब्बा है और उसको डब 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 ऐसा प्रेस करते जाइए। यू कैन इवन टेक दिस और ये 30 साइकिल्स करेगा। 30 साइकिल्स के बाद में वो चीन को लिफ्ट के माउथ टू माउथ जैसे मैंने आपको बताया वो दे भी सकते हैं। एवरी टाइम हम लोग इसके फिल्टर को चेंज करते हैं ताकि हाइजीन मेंटेन हो सके। और ये होने के बाद समझ लीजिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये अभी बताएगा कि ये बंद हो गया तो ये वार्निंग भी दे रहा है। और ये एंड सेशन बताता स्टूडेंट 1, फिर हमें बताता इधर आइए कि सेशन को कैंसिल करना है एंड करना है। मैंने बता दिया मुझे एंड करना है तो ये बताएगा आपने कैसे किया, आपके कॉम्बिनेशन कैसे है और आपको क्या करना है। आपको शेयर द रिजल्ट, उसको सर्टिफिकेट भी बना के देना है, किसको देना है समझ लीजिए। और आप समझ लीजिए एक किसको ये सर्टिफिकेट बना दिया स्टूडेंट नंबर 1 ने 1 अक्टूबर को अंडर द गाइडेंस ऑफ अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन सीपीआर किस तरीके से दिया और उसके अंदर पूरी रिपोर्ट आ जाएगी उसने सही तरीके कितना दिया, बीच में छोड़ कितना दिया। तो ये साइंटिफिकली हम करेंगे तो स्टूडेंट सही तरीके से उनको जब गाइडेंस मिलती है तो रियल लाइफ में भी कैसे मैंने किया था वो सही तरीके से कर पाएंगे। सो आई थिंक विद दिस अगेन देयर आर 2 पीपल, दोनों आज हम लोग सब वी केयर की शर्ट हम लोग पहन के आए। दिस इज द वे वी आर सेलिब्रेटिंग गांधी जयंती एंड टू मेक इट इजी जब हम भागेंगे भी तो हम लोग ने पीछे हमारा क्यूआर कोड भी रखा हुआ है कि कभी कुछ हो गया तो आप कैमरा फोकस कीजिए और सीधा विजन हॉस्पिटल के वी केयर पे आप साइड पे पहुंच जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप यू हैव एंजॉयड एंड we have Dr. Vikrant with us. He is busy in the cath lab. He has just come back. So we will also tell him to carry on from here because question answer jo hai, so Vikrant, Dr. Srishti, they'll be taking. So can you give Dr. Vikrant the co-chair? Please question answers bataiye. Yes. So मैं क्या करूं, म्यूट कर दूं? या हाँ प्लीज बोलिए। So I have to really thank the people who are there, who have come along with me, and especially I have to thank. No, we'll take the question answers, but this could not have been possible without the help of Stans Academy, who have been supporting us for our digital endeavor. और उनके साथ में उनके बहुत ही यंग डायनेमिक इंटर्न सूरज कड़ीवान जिसने मेरे साथ दिन रात बैठ के मेहनत की है, पिंडारे जी जो कभी कभी हम लोग बेचारों को इतना तंग करते हैं कि नाराज भी हो जाते हैं, और प्रशांत पाटिल, the whole team who have been working along with Dr. Srishti and Vikrant and of course myself, and together हम लोग का यही मुहिम है कि this is a not for profit. ये हमारी फर्स्ट स्टेप थी और ये शुरुआत है, एक ही बार में नहीं। आप फिर हम लिमिटेड लोगों के लिए जाएंगे, स्कूल्स में आएंगे, हम स्कूल्स में आके हम लोगों को सिखाएंगे, यंगस्टर्स को, लायंस क्लब, फिर छोटे अच्छी सोसाइटीज हैं वो भी एक AICD रखना चाहेंगे, उनको हेल्प करेंगे और ये हमारा एम है। और गॉड विलिंग जो हमने आपको ड्रोन की पिक्चर बताई, हमारी कंट्री अभी काफी टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, तो एक दिन कोई ना कोई आके अगर एनजीओ हमें हेल्प करेगा विद दिस ड्रोन, तो एक हम AAD वाला ड्रोन भी हम टेस्ट करेंगे विद परमिशन फ्रॉम आवर सिविल एविएशन, ताकि we should be one of the first to start in Nasik city. I hope God gives us this strength and blessing so that, believe me, the pleasure you get when आप लोगों को मिलेगा, आपने एक जिंदगी बचाई,
कि आदमी चल रहा है, ये मेरी वजह से। मैंने उसको सिर्फ क्या किया, एक पंप किया थोड़े समय के लिए। आई गिव हिम अ गिफ्ट ऑफ लाइफ, बजाय कि ये डरने से, मैं डर के कि भाई अरे ये मेरा काम नहीं है, डॉक्टर आएगा तब तो खेल खत्म हो चुका है। सबसे पहले आप ही, और वो आपके फैमिली मेंबर हो सकता है। और इतने लोगों ने सीखा है कि आपको पता चले कि आपका कोई नियर एंड डियर है, वो कोलैप्स हो गया और किसी और ने रिससिटेट किया, यू विल बी एवर ग्रेटफुल टू हिम फॉर लाइफ। ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं। और आजकल वी विल नॉट गो हाउ टू प्रिवेंट दैट, विक्रांत विल बी देयर, आई एम देयर टू आंसर, बट प्लीज अभी क्वेश्चन आंसर होना चाहिए, इंटरैक्टिव सेशन होना चाहिए, ताकि आपके मन में कुछ क्वेश्चंस हैं, मुझे पता नहीं दिखाई दे रहे हैं कि नहीं, और कोई भी चैट बॉक्स में देखिए एंड वी विल आंसर। लेट मी गो टू चैट। Yeah. Why there is nausea and cold sweat? Is that a symptom of cardiac heart attack? Vikrant ji? So, of course, whenever अगर कभी कोई भी पेशेंट प्रोफ्यूज स्वेटिंग या अचानक से बहुत छाती में दर्द लेके आता है, तो these are the primordial, the first symptoms of heart attack. Of course, हमें उस टाइम पे पता नहीं रहता है कि पेशेंट ऑलरेडी डायबिटिक है, कभी कभी शुगर कम होने की वजह से भी प्रोफ्यूज स्वेटिंग हो सकती है। बट अगर हो सके कोई रिलेटिव साथ में रहे तो हमें उनसे बात करनी चाहिए। Other thing is that if the patient can give a history, we should ask whether you are a diabetic. If not, and the patient is having profuse sweating, and if the heart rate is low or if the pulse is not recordable, then we should at least alert the ambulance. And if the patient arrests, of course, we have to go as per the protocol. जैसे सर ने बताया है। तो yes, बहुत profuse sweating होना, बहुत सारी बेचैनी लगना, ये सब सिम्टम्स रहते हैं हार्ट अटैक के, which is true. How to attempt CPR if patient is injured at neck? Yeah, so like how sir had told earlier that whenever you find a patient unconscious or a patient is found lying down on the road or on the floor, the first thing is that you have to take care of the neck. We should make sure के neck को अच्छा support मिले. And first of all, you have to see whether the patient is breathing by himself or no. वो अपने आप से सांस ले पा रहा है या नहीं. And ये प्रोटोकॉल तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि अगर कभी नेक इंजरी रहे तो फर्स्ट थिंग इज दैट वी शुड मेक श्योर दैट द एयरवे इज सिक्योर. एंड ऑफ कोर्स इफ देन अगर जैसे पेशेंट लगता है अरेस्ट हुआ है तो हम लोग को सीपीआर शुरू करना चाहिए. बट नेक को अच्छा सपोर्ट, दे शुड बी लाइन डाउन straight. There are some questions that does sorbitrate or any other medications help? अगर पेशेंट को बहुत एक्सट्रीम छाती में दर्द हो रहा है और बहुत प्रोफ्यूज स्वेटिंग हो रही है तो yes, it may help, but it is better to identify whether the reason of having this is heart attack. क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है मेजर हार्ट अटैक होने की वजह से पेशेंट का ब्लड प्रेशर बहुत कम हो सकता है एंड गिविंग सॉर्बिट्रेट might actually reduce the blood pressure more. So of course, if the patient can give a history, he is stable, you should rush him to the nearest hospital or at least alert the ambulance system or the hospital. बहुत सारे समय हमारे जैसे पेशेंट्स हैं उनको हमारे हॉस्पिटल के एम्बुलेंस एज वेल एज आईसीयू के नंबर दिए जाते हैं एंड द पेशेंट्स और रिलेटिव्स दे एक्चुअली कम्युनिकेट विद अस आस्किंग कि अभी ऐसी कंडीशन है, हमें क्या करना चाहिए. And many of the times it is not possible to have aspirin or sorbitrate tablet with you. So you should be careful, but yes, it may help definitely, especially if the patient has got typical symptoms. और बहुत बार अगर बीपी कम हो उस समय सॉर्बिट्रेट देना हानिकारक भी हो सकता है. तो एस्पिरिन में भी सेफ फॉर सम टाइम, बट इट टेक्स टाइम टू एक्ट. एस्पिरिन विल नॉट help you in cardiac arrest, but it will immediately, it takes some time
for the platelets to get inhibited. एक टेक्निकल क्वेश्चन है, बट इससे बजाय सबसे पहले जो आप कर सकते हैं, अगर अरेस्ट हुआ, CPR, CPR, CPR. Be bold, start early, be very firm. ये मत सोचिए कि कौन देख रहा है, मैं एक CPR दे रहा हूँ, ये लेडीज पेशेंट है, इससे कुछ वल्गर लोग ना समझे, आप किसकी जान बचा रहे हैं. और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू आर ए कार्डिक हीरो. और हमारी सोसाइटी में भी आजकल अगर आपने CPR दिया, इसकी रिब फ्रैक्चर हो गया, या CPR दिया तो वो नहीं बच पाया, उसमें कोई गिल्ट फीलिंग नहीं होती कि तुमने क्यों किया. एंड द कंट्री, वी शुड इवन एक्नॉलेज देम कि दे आर द हार्ट हीरोज. उसने कोशिश तो किया. तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन था विक्रांत, which we already discussed, difference between heart attack and cardiac arrest. या सो कार्डियक अरेस्ट, जैसे सर ने बताया है कि जैसे अगर एक्लेरा से ही लाइट चली गई तो पूरे नासिक में लाइट चली जाएगी. सो इफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट is suddenly abrupted, it will cause a cardiac arrest. But heart attack usually is caused because of a block in the heart vessels, and both are totally different conditions. Cardiac arrest एक बहुत sudden event रहता है जिसकी वजह से हार्ट बंद हो सकता है, and heart attack can also cause the same, but the cause is different and sometimes it gives time. ऐसी पेशेंट में जैसे पूछा गया है कि एस्पिरिन या सॉर्बिट्रेट दे सकते हैं, क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी उसको स्वेटिंग हो रही है, उसको चेस्ट पेन हो रहा है, एंड ही इज कॉन्शियस इन फ्रंट ऑफ यू, सो यू कैन अटेम्प्ट ऑल दीज थिंग्स एंड यू कैन गेट द पेशेंट टू द हॉस्पिटल इन हार्ट अटैक. बट इन सडन कार्डियक अरेस्ट probably you will not get the time, and suddenly patient is found unconscious, or you find them on the ground and you have to start CPR immediately. Nowadays, everyone talks of complaints of anxiety. I think COVID के समय में और भी हो गया है. Does it have any adverse effect on the heart if ignored? Can Srishti answer that? Or Vikrant will answer if she is not around. So हार्ट अटैक होने के बहुत सारे कारण रहते हैं. लाइक सर हैज टोल्ड, आज के जमाने में कोविड, स्ट्रेस, एंजाइटी, लूजिंग जॉब्स, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, apart from the major causes like hypertension, diabetes does cause effect, and incidence of heart attack can go up in these patients. We should not ignore these symptoms. आजकल डिप्रेशन, एंजाइटी पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बिकॉज लोग पहले जैसे लोगों को मिलते थे, घूमते थे, काम करते थे, नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ सो मेनी रिस्ट्रिक्शंस, स्पेशली बिकॉज ऑफ कोविड. सो यस, इट कैन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड अगर आपको ऐसे कभी सिम्टम्स रहते हैं, देन यू शुड बी ओपन अबाउट इट, एटलीस्ट डिस्कस विथ योर फैमिली और योर डॉक्टर्स, विच इज very important. It can, yes, if unattended or ignored. तो एक और भी जो कंटिन्यूएशन ऑफ हाउ टू अटेम्प्ट CPR if patient is injured at neck. देखो, अगर कार्डिक अरेस्ट हुआ है, हार्ट को तो शुरू करना है, 4 मिनट तक अगर आपने नहीं किया तो उसकी नेक अगर रहे ना, पेशेंट ही नहीं रहेगा. तो नेक इंजरी, व्हाट आई मीन टू से, you have to take care of the neck. Neck is the upper part, but you are giving compression not in the upper part of chest but lower part of chest. But you have to give lot of restrained cardiac CPR, which is important. बजाय ये कि बहुत violently करना है. इसी तरह खाली जब पूछना है भाई तुम कैसे हो, तो शोल्डर पे टैप करो, या तो उसको आप नीचे, नेक इंजरी हुआ है, कहीं आपको ब्लड दिखाई दे चेस्ट के ऊपर, तो आप उसको लेग के पिंच करके देख सकते हैं, बजाय नहीं कि आप शोल्डर पे ही करना है. शोल्डर अगर फ्रैक्चर हो गया हो गिरने के बाद, तो नेचुरली आप उसको टच नहीं करेंगे. बट इंजरी हो तो भी अरेस्ट है तो वह तो वैसे भी जाने वाला है. जैसे मैंने बताया, इवन इन यूनाइटेड स्टेट्स अनअटेंडेड और थोड़ी देर बाद भी तो 8% खाली सरवाइव करते हैं. और हमारे यहाँ सोचो फिर क्या होता होगा. तो अगर हम करें तो अगर 20% भी सरवाइव करें, 100% तो आप सरवाइव नहीं करने वाले, ये मान के चलिए. लेकिन आपने अटेम्प्ट किया है, दैट इज इंपॉर्टेंट. तो ये क्योंकि सबसे बड़ा मेजर किलर है. सोचो एक आदमी कितने, अभी हम लोग जिम्स के भी आजकल वीडियोस वायरल हो रहे हैं, करके आया, ओवर एक्साइट किया तो और इमीडिएटली वो कोलैप्स हो गया और मर गया.
I mean, what a big, हमारे खुद के हमारे एक बहुत यंग डायनेमिक कार्डियोलॉजिस्ट के साथ भी ऐसा हुआ जो हमें कुछ साल हो गए, which we are all shocked. तो ये हर जगह होता रहता है. Question is that can some test help us to prevent cardiac arrest and heart attack? Vikrant ji. So, first of all, we have to understand what are the possible conditions in which you should get evaluated. समझो अगर आपकी family history बहुत strong है, your siblings, your brother, sister, or your parents have diabetes, have blood pressure, dyslipidemia, cholesterol का problem, especially young age में, कम उम्र में heart attack हुआ है, कम उम्र में stroke हुआ है, तो ये patients को evaluation करना बहुत जरूरी है. Nowadays, what is happening is many of the patients, सबको लगता है सब fit है, and they do not come for routine testing. Even at the age of 60, you find out कभी उनने शुगर चेक किया है, ब्लड प्रेशर चेक किया है, कभी भी नहीं चेक किया रहता है. So such patients, अगर वो लोग at least basic testing, especially after the age of 30 or 35 years, they do their cholesterol level, they check the blood pressure. अगर उनको डायबिटीज निकलता है और वो पहले ही आइडेंटिफाई होता है, तो ये पेशेंट्स के में हम लोग पहले से प्रिकॉशंस ले सकते हैं ताकि उनका इंसिडेंस ना बढ़े. Many of the times what we routinely do, एक कॉमनली यूज टेस्ट रहता है जिसके अंदर हार्ट का स्कैन करते हैं, जिसके अंदर हार्ट का पंपिंग कैसा है, हार्ट का फंक्शन कैसा समझता है. एंड अदर थिंग इज स्ट्रेस टेस्ट जो रूटीनली हम लोग करते हैं. अगर स्ट्रेस टेस्ट हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है कि हमें इंसिडेंस, ज्यादा इंसिडेंस है कि नहीं आगे जाके हार्ट अटैक या हार्ट की रक्तवाहिनी में ब्लॉक होने का. अगर हम लोग ये कुछ चंद टेस्ट करें, then we can really prevent events, and probably if it is fine, we can even repeat it after 5 years, and maybe after the age of 40, probably once in 2 years. And especially if you have got risk factors, family history बहुत strong है, तो at least year or in a year or two, you should get your basic labs like cholesterol, sugars, and a routine test like blood pressure checked. So Dr. these are the Sagar things. Reware has come here. He is also the director of non-invasive cardiology of our hospital, just like Vikrant is the director of invasive cardiology. Sagar, you will tell us that how you do tests which are very important, and by doing a stress test, and now that you have got stress test with artificial intelligence, with 4D, with even stress GLS. These are things which are yet to come even in the American guidelines. Your pickup rate is 90 to 95% as compared to a routine test, which I think is between 60 to 70. In fact, even we have published the papers which have been accepted in our Indian Academy of Echocardiography in this month in Bangalore, and even in the World Congress in Dubai. Sagar will tell us more. How do you do this? So basically, we are routinely now doing stress echoes, and we are the one of the largest number of case studies in dobutamine stress echoes and stress echoes to stratify the risk of the patients in the for diagnosis of ischemic heart disease. If patient is having any early symptom of any coronary artery disease, we usually let patient walk on the treadmill, check his heart rate response, his BP response, check for the symptoms. If patient is having any chest discomfort, any breathlessness, or any other ECG changes, then there is a definitely underlying coronary artery. And even those nowadays, the sensitivity is of the stress is hardly 60 to 65%. So nowadays we are doing a stress echo, that is, we incorporate the echocardiography technology with something called as a strain GLS with that, and the accuracy goes up to the 90 to 95% in the diagnosis of the early diagnosis of the coronary artery disease, and which actually saves a lot of heart patients and save the patient heart damage, and which we diagnose very in the early stages of the case. So that is what even in the patients who cannot walk on the treadmill, we are doing a dobutamine stress echo where we inject injection dobutamine, we increase the heart rate, we check for the
ischemia or whether the oxygen or whether any blockages are there in the coronary arteries. If they are there, we straightforward take patient for the coronary angiogram. A question to Vikrant is heart attack, can it be hereditary? So Hanuman, this is something that I just discussed. So we have to understand, we have to take a good history from the patients. अगर समझो अगर पेशेंट की कोई तो भी फैमिली में कम उम्र में हार्ट अटैक या लकवा हुआ है, there is a possibility that the people are at an increased risk of developing MI or stroke. इसके लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर पेशेंट के मम्मी पापा को कम उम्र में हार्ट अटैक हुआ है तो हमें भी होगा, लेकिन जिनको कम उम्र में हुआ है डेफिनेटली दे शुड गेट टेस्टेड और एटलीस्ट गेट सर्टेन blood test and a stress echo, maybe after 30 years, then 40 years, to understand that you are at a high risk or no. अगर समझो पेशेंट को ऑलरेडी रिस्क फैक्टर्स है जैसे कि डायबिटीज या डिसलाइपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज्यादा होना, और अगर इनको भी कम उम्र से हुआ है तो अगर उसको पहले से आप एड्रेस करो तो आपका रिस्क डेफिनेटली काफी कम हो जाता है. So yes, you should, there is a risk. It is not that if hereditary means हम लोग को इंक्रीज रिस्क है, जैसे कि अगर मम्मी पापा को किडनी का प्रॉब्लम है तो हमें थोड़ा रिस्क है, जैसे ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट वी विल गेट इट. बट इफ you had a history, you should get evaluated earlier, especially for commonly acquired disorders. Other thing is that what routinely we do, जैसे हम लोग बताते हैं कि हम लोग हार्ट का स्कैन करते हैं या स्ट्रेस टेस्ट, definitely doing a exercise stress echo will increase the sensitivity from almost 68 to 95%, which actually increases the probability of picking a disease. अगर patient को ज्यादा risk है तो advanced test करने से risk पकड़ना ज्यादा easy हो जाता है, which should be done. so I think the audience has had, thank you very much. We had a very interactive audience and we thought the program, we started sharp at 7 o'clock and we thought we will end before 8 o'clock. But we have a very lively audience and we also thank the people from Mumbai who would come and join. And I'm told that there are many parts of the country people have come and joined. We'll find out later on. This is the beginning. This is not just a one show where is there anyone who would wish to say some closing remarks? I can see Yash back again. Yash, he has never stayed for a workshop so much, I think, in his life. No. Not for the eye care also. It's a privilege. Vinod, I actually attended the entire session. I was quite interested that you put together some of those footballer videos I have seen for the first time, which was quite interesting. My sincere wish is that that this program continues on a regular basis and you involve more and more of our fraternity so that it spreads all over Nashik and Nashik becomes the first cardiac arrest responsive city. Let that be a healthy competition between cities, that who will become the first. No, we'll win. And please continue it on a regular basis. This must become a regular affair. Yeah. Let's hope we get the Dronacharya with us first. Yeah. The drone, it's a very exciting technology. Imagine ambulance taking time, it is stuck. When we wanted to start this critical care, I was a resident in Sion Hospital, and the trauma, when we got a call, so I was very excited. I ran down towards the ambulance and said, "Wo chai pine ko gaya." So, we all had those teething problems. So that was, of course, 40 years back, 30, 40, but times have changed. And, really, you have started a journey. And we will, assure you that we will try to do it in a good way. And we are also, with all this technology, how you give the CPR, it gives you a certificate, it gives you whether you have done it properly, whether you're compressed, whether you're relaxed. These are very simple things. But then when you do it on this mannequin, then you get that feel, and then when you're happening to do it in real time, I think then the same thing translates. So I hope a time will come when we can get the Yash Lokhandwala and his team to Nashik.
and for the CPR, and even enjoy the wine capital of India for whatever it has to offer. So I think with this, thank you all very much, and we shall sign off. Anyone wants to speak anything? Anyone from the audience? ऐसा थोड़ी कि school teacher है, can raise hand or something. कुछ बोलना है, we'll try. Pendari ji, कुछ कर सकते हैं ऐसे? Can others we call it off a day? It is, yes, very informative. Thank you, yeah, and all those things. Good, good. Thank you all. Thank you, Yash, for being with us. And Dr. Amol Bhalekar, I can see he wants to say something. Yes, sir. This is a very nice initiative by you. And at Apex Wellness Hospital, we have asked all of the technician team and even the doctors to attend this because we have to take it ahead. I think you have started a revolution now and you would get it to the masses. And I congratulate you for this. I'm very happy to see you here again. And let me tell about I Amol. think- He's I a think citizen of Vinod- Norway, and he, was to become on the way to Australia, but somehow he changed his mind and he's with us in Nasik. He's really proud to have such a guy with us. He's an interventional radiologist. Vinod, Yes, sir. hello, Vinod, can you hear me? Yeah, of course. So what I feel is if we really want to make a meaningful impact, let this be the first sort of seed, but two things you need to do. One is train the police force, because if the police are aware that this needs to be done, then not the fear of people or the hesitancy or the reluctance of a police is with you in your endeavor, it will make people much more participant. And second thing, if the police stations all have AEDs, I don't know how many police stations are in Nashik, if there are 50, then you know that you have to call the police. Police helps you revive the victim. So I think these two steps, and you need to take the local medical associations with you, and then only you will be able to make a significant and meaningful impact in Nashik. Yeah, Yash, we did call them, but maybe I think they were very much occupied with, a lot of activities. So probably they said, we hope that they join us at some time back. Like you have done for the entire UP police this week is very creditable. I was there. We have done it for the Mumbai Police, Railway Protection Force, not all part of it. A large part of Ahmedabad Police, some of the Haryana Police, UP Police we have started, and they want to do the entire UP Police, and then the Indore Police. So we are hoping that local people take it up, because we can. So that is the whole idea of creating different hubs all over the country, which has been achieved to a significant extent in this week. So it's a good suggestion. People have said and informative, blah, blah, blah. I think it's all, should we all sign up? So let me at the end, there are people still now in the waiting room, So should we, I think now we'll give them the link for them to see. So thank you all very much. And I'm really indebted. Thank you from the depth of my heart. And the people all who have, all my team of Vision Hospital, our mentors, the eye care, and we have Suraj Gariwan, and we have Sudham Pendare, Prashant, Patil, the entire family, with I had to spend hours just to, and I was worried that kidhar ye chala hi nahi, digital fail ho gaya. So what will happen? This happened till today afternoon. So, but luckily with the grace of God, everything has gone so well. It's a good start, and I'm sure, I promise you, Yash, that we will take it to greater heights. And Vikrant is more dynamic than me, So, I'm just a sort of a person who's a director. And this, all my whole team, everyone, Sagar Bevare, whom you heard, they're all very dynamic, and they will take it to the next level, along with all Nasikites, including my own society, the Cardiovascular Society, of which we have formed, and I'm the president. And even our API, I was the immediate past president. I have involved them, all of them. And rightly, as you have mentioned, we will again talk to the police force, and we will tell them, we'll hold it in small sessions. Abhi wo mannequin leke, we'll take it to every police station and train them. And that would be, I think, better than, of course, unless there is a third wave breaks out, then, but still, we can still have digital sessions, because people will continue to fall. So we have to be trained. We have no other way out.
So thank you all very much from the depth of my heart, and good night and goodbye. Any questions you can always keep on posting to us, and we'll certainly be there to answer it. So with this, I sign off. Thank you all very much. Bye-bye. Yes.